Hello students, in today's sessions we are going to talk about electromagnetic inductions, which is unit 6, which is chapter 6 of class 12 physics. In today's sessions we are going to learn about the basics of electromagnetic inductions. Today is the first lectures for this chapter. So myself Mohammad Bakhtiar Khan, having 6 years of teaching experience, and I have a BTech. I have done my BTech with gold medal, and so far I have guided 1000+ students in offline mode. I am guiding a student from 2016 for both physics and chemistry, and the student have done excellently well in their career, and the list of a student has been listed out. The result has been listed out. So let's begin our class. So in today's session we are going to talk about electromagnetic inductions. Let us understand the basics of it. In 1820, Oersted confirmed the magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट. उसने ऑब्जर्व किया था कि एक वायर है हमारे पास, एक वायर है, इस तरह से हमारे पास वायर है. इसमें अगर आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा था कि आई अमाउंट ऑफ करंट जाने से इसमें क्या हो रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था. So magnetic effect was produced. Magnetic field was observed. तो 1820 में ऑरस्टेड ने कंफर्म किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लेटर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में ये क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या इसका अपोजिटली ट्रू नहीं हो सकता. इट अपोजिट must be true. Magnetic effect should produce एक मिनट. Magnetic effect should produce इलेक्ट्रिक करंट. तो उसने क्या किया, एक कॉइल को लिया गया, एक कॉइल लिया गया, इस तरह से एक कॉइल लिया गया, इस तरह से एक कॉइल लिया गया. एक कॉइल लिया गया, इसमें जब
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बार मैग्नेट को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, इसमें बी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था तो देयर वाज ए करंट which was observed in the conductor. There was a current which was observed in the conductor. तो इसमें क्या होगा कि इसका अपोजिट भी ऑब्जर्व किया गया। इट्स अपोजिट मस्ट बी ट्रू कि मैग्नेटिक इफेक्ट शुड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। जब बार मैग्नेट को इन द विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लाया गया, इन द विसिनिटी ऑफ द कॉइल लाया गया, तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से देयर वाज ए करंट इन द सर्किट, दैट कंफर्म्स दैट कि अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है तो मैग्नेट के इफेक्ट से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। Thus we can say that कि magnet effect produce electric current. Thus we can say that magnetic effect produce electric current. And this is how the electromagnetic inductions came into being. आज इसका एप्लीकेशंस हम लोग हर जगह देख सकते हैं। आज हम लोग के पास डीसी मोटर है, हमारे पास स्टेपर मोटर है। These motors actually work on the principle of electromagnetic inductions. So the applications which we can see today, क्या क्या एप्लीकेशंस हम लोगों ने देख सकते हैं, हम लोग देख चुके हैं, हम लोग जानते हैं, जैसे कि कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी converting mechanical energy to electrical energy, और हम लोग देख चुके हैं जैसे कि एप्लीकेशन कन्वर्टिंग जैसे मैकेनिकल एनर्जी टू टरबाइन से जो पावर टरबाइन फॉर पावर जनरेशंस converting electrical to mechanical energy। एग्जाम्पल के तौर पर फैन है, मोटर्स है, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, etc. So these are the applications of electromagnetic inductions. So let us start with the first important concept of electromagnetic induction is magnetic flux. Let us understand what is magnetic flux. Magnetic flux is denoted by phi. What magnetic flux? It is defined as number of magnetic lines of force it is defined as number of magnetic lines of force crossing a surface, magnetic lines
of force crossing perpendicular to a given area, crossing perpendicular to a given area. इसका इलस्ट्रेशन देखते कि कैसे कर सकता है ये। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर हमारे पास कोई कॉइल रखा हुआ है इसमें, इस कॉइल, दिस वन इज द कॉइल which is kept in a magnetic field, तो कॉइल का जो एरिया है, इस एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना पास कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? किसी भी सरफेस के लिए डायरेक्शन हमारा इस तरह से निकलता है। ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, उससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, वही हमारा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑफ एरिया हो जाएगा, एरिया का वेक्टर हो जाएगा, एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालना है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन में क्या है? एरिया वेक्टर लाई कर रहा है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? थीटा 0 है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये कैसे टूटेगा? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। When theta is equal to 0, तो ये क्या बन जाएगा? फाई इज इक्वल टू बी ए। ये हमारा एक्सप्रेशन जनरल है। तो एरिया वेक्टर हमारा क्या होना चाहिए? एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी इंटू ए हो जाएगा। अगर इफ सपोज, ये सपोज कि ये हमारा केस 1 है। अगर दूसरा केस हम लोग लेते हैं, अगर इफ वी टेक अनदर केस 2 अगर लेते हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उसका एरिया वेक्टर अगर आपका इस तरह से लाई कर रहा है, ये एरिया वेक्टर है, ये इस तरह से लाई कर रहा है, ये एरिया वेक्टर अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ लाई कर रहा है, एरिया वेक्टर, और बी वेक्टर हमारा क्या है? इस तरफ लाई कर रहा है, तो इस दोनों के बीच में कितना एंगल है? एरिया वेक्टर इधर ऐड कर रहा है, बी इधर ऐड कर रहा है, तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में कितना एंगल है भाई? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। थीटा यहाँ पर क्या है भाई? 180 डिग्री। तो यहाँ पुटअप कर सकते हैं बी ए कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है? -1 होता है, राइट। नाउ द फ्लक्स इज अ नेगेटिव फ्लक्स, बी ए। एक हमारे पास केस होता है, तीसरा केस कि हमारा प्लेन जो है, ये प्लेन हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाई कर रहा है। अगर हमारा प्लेन इस तरह से लाई कर रहा है सरफेस पर, इस तरह से, ठीक है, ये प्लेन हमारा लाई कर रहा है, तो एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। किसी एक पॉइंट को पकड़े, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। एरिया वेक्टर, अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें, फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? बी डॉट ए। तो ये कितना हो जाएगा?
बी ए cos 90, cos 90 0 होता है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो हम लोगों ने 3 केस पढ़ा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू ए गिवन एरिया। किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली जो पास कर रहा है वही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। यहाँ परपेंडिकुलरली पास कर रहा है फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। यहाँ परपेंडिकुलरली पास नहीं कर रहा है, यहाँ परपेंडिकुलरली पास नहीं कर रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर पास नहीं कर रहा है। यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इस केस में फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में माइनस बी है और इस केस में प्लस बी है। एक हम लोग एक पोजीशन लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर लाई कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर लाई कर रहा है, ठीक है, और हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल है, किसी एंगल पर सबटेंड कर रहा है। छोड़ो, अगर ये कॉइल है किसी एंगल पर सबटेंड कर रहा है, ये एंगल है ओ, किसी एंगल पर सबटेंड कर रहा है, ये बी वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर, ये स्मॉल एरिया डी ए, किसी एंगल पर ये लाई कर रहा है डी ए वेक्टर इस तरह से, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो मेजर होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू ए गिवन एरिया। तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू, तो ये डीए का जो कंपोनेंट निकलेगा, एक कंपोनेंट इसका किस तरह से निकलेगा, इस दिशा में एक कंपोनेंट निकलेगा। ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा डीए कंपोनेंट है। तो डीए का एक जो कंपोनेंट हमारा इस दिशा में ऐड करेगा, डीए कॉस थीटा, ठीक है, डीए कॉस थीटा। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, इस डीए का कंपोनेंट आपको इस दिशा में लेकर निकालना होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डीए, बी डॉट डीए। अगर हम इसको लेते हैं तो इसका ये कंपोनेंट कैसे बनेगा, इसका कंपोनेंट आपको बनाना होगा, तो कैसे बनाइएगा, इसका कंपोनेंट आपको ऐसे बनाना होगा। तो इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट आपका यहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पे ये कंपोनेंट आपका यहाँ लाई कर रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट आपका इधर लाई कर रहा है, डी ए डैश, और डी ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो स्मॉल एरिया से हमारा कितना फ्लक्स पास करेगा, डी फाइव बी पास करेगा, ठीक है, डी फाइव बी पास करेगा। अब हम इसको तोड़ देते हैं, बी डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को पूरे सरफेस पे चाहिए फ्लक्स पूरे सरफेस पे चाहिए। एक स्मॉल एरिया कंसिडर किए थे, हम लोग को क्या चाहिए, फ्लक्स पूरे एरिया पर चाहिए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 5b इज इक्वल टू
बी डॉट डी ए, इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, समझे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या हो सकता है, एक जनरल कंडीशन हो सकता है जिसमें एरिया कोई एंगल से मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है। उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस एरिया वेक्टर का हम लोग को कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ए गिवन एरिया होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ए गिवन एरिया, परपेंडिकुलर टू ए गिवन, इस तरह का एरिया बनना चाहिए, इस तरह का एरिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं इसकी यूनिट्स पर बात करते हैं। यूनिट्स क्या क्या हो सकता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्या हो सकता है उसको देखते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्या हो सकता है, लेट्स सी। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, ठीक है। तो बी का क्या लिख सकते हैं, टेस्ला, इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, एक पहला यूनिट हुआ। सेकेंड यूनिट इसका क्या हो सकता है, टेस्ला मीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं वेबर, ठीक है। तो ये टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर भी बोलते हैं, वेबर, वेबर साइंटिस्ट के नाम से, ठीक है। और 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 वेब, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 वेबर के बराबर होता है। तो ये 3 यूनिट हम लोग को याद रखना है इसका। और बस अब डायमेंशन पर आ जाइए। और ये हमको बताना भूल गए कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट से आ रहा है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चलते हैं डायमेंशन की ओर। इसका डायमेंशन क्या क्या हो सकता है, डायमेंशन क्या है इसका वो निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ 5b वो क्या हो सकता है, 5b क्या हो सकता है, 5b क्या हो सकता है, b इंटू ए हो सकता है। b को हम लोग लिख सकते हैं, b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b को हम लोग लिख सकते हैं f इज इक्वल टू BIL, ऐसा लिख सकते हैं। तो b को हम लिख सकते हैं F/IL। अब क्या करते हैं, b के जगह पर ये वाला वैल्यू को पुटअप करते हैं, ये वाला वैल्यू को पुटअप। तो 5b हमारा क्या आ जाएगा, 5b हमारा क्या हो जाएगा, F/IL इंटू ए। फोर्स का कितना होता है, MLT टू द पावर -2। एम्पियर का क्या होता है, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। लेंथ का क्या होता है, L होता है। एरिया का कितना होता है, L स्क्वायर होता है, L स्क्वायर होता है। अब विद दिस हम लोग क्या करेंगे, लेंथ का हमारा एरिया होता है, ये लेंथ में से एक उड़ गया। अब हमारे पास बचा क्या, ML स्क्वायर T टू द पावर -2 A पर पावर -1। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया 5b का। तो 5b का डायमेंशंस हमारा क्या हो गया, ये हो गया 5b का डायमेंशन ML स्क्वायर T टू द पावर -2 A पर पावर -1। ये डायमेंशन हो गया इसका। ये हमारे पास सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एरिया। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया वेक्टर हमारा 60 डिग्री बना रहा है, ये हमारा 60 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 60 डिग्री एरिया वेक्टर बना रहा है, ठीक है, विद द एक्सिस। तो हम लोग को क्या करना है, phi इज इक्वल टू B डॉट A लिखना है,
बी ए के बीच में जो एंगल है, इसके बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। ये एंगल कितना है, 120। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 120। ये एंगल 120। तो बी और ए के बीच में जो एंगल है वही लेना आपको, ठीक है। इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए। इसका कंपोनेंट आप क्या कर रहे हैं, इसका कंपोनेंट आप निकाल रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, इसका कंपोनेंट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बना रहे हैं इसको, तो इसका कंपोनेंट कैसे निकलेगा, बी ए cos 120। cos 120 कितने, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है। तो ये कितना हो जाएगा, -BA/2, -BA/2। क्योंकि cos 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos 90 + 30, सेकंड क्वाड्रेंट -sin 30 -1/2। ये हमारा आंसर हो गया, -BA/2। तो कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एरिया, हम लोग को निकालना सीख गए इससे किस तरह से फ्लक्स निकाला जाता है। अब चलते हैं हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, वो क्या होता है, लेट्स सी। तो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो ये लॉ कहता है कि when there is a change in a magnetic flux, change in a magnetic flux, passing through an area, bounded by a close conducting loop, and EMF is induced यही लॉ बोलता है कि when there is a change in magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, थ्रू एन एरिया बाउंडेड बाय क्लोज कंडक्टिंग लूप एंड EMF प्रोड्यूस होगा, तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि E = क्या होगा, फ्लक्स के चेंज होने से E = d∅ B/dt। ये नेगेटिव क्या है वो बताते हैं बाद में, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लेंज लॉ, ठीक है, विल डिस्कस इट लेटर। जब भी कॉइल में जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी भी एरिया में, तो उस एरिया में क्या होगा, EMF प्रोड्यूस होगा, मतलब वोल्टेज बनेगा। अगर हमारा फाई कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा, E = 0 हो जाएगा। इफ फाई इज नॉट कांस्टेंट then E is not 0, and I is not 0, E and I both are 0। ये हमारा केस हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, बस वही मैथमेटिक्स लगाना है। गॉट माई पॉइंट।
तो हम ये भी कह सकते हैं, अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि the induced EMF in a closed loop equals the negative of time rate of change of magnetic flux through the loop. ये भी कह सकते हैं हम through the loop, right? तो induced EMF क्या है? In a coil in a closed loop equals the negative of time rate change of magnetic flux through the loop. तो इसको हम लोग इसका मतलब ये है कि E is equal to minus d phi b by dt, ये इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब यही है, ठीक है। चलते हैं अब हमारे पास क्या क्या मेथड हो सकता है वो देखते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव क्या है? नेगेटिव हमारा क्या है? डायरेक्शन बताता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, डायरेक्शन लेंज लॉ के अनुसार बताता है, लेंज लॉ। आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज लेंज लॉ इन डिटेल। अभी टाइमिंग के लिए समझिए कि डायरेक्शन बताता है, ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। ठीक है, अब पास क्या एक नया मतलब कि मेथड्स, अब हम लोग को समझना है कि किस तरह से हम लोग ईएमएफ में बदलाव ला सकते हैं, किस किस तरीके से। मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे चेंज होगा तो ईएमएफ में भी चेंजेस आएगा, तो कैसे कैसे ला सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग को पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। अब बी क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं कॉस थीटा। तो हम लोग कैसे कैसे फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं? बाय वेरिंग थीटा, थीटा को चेंज करने से, एरिया को चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से, बाय चेंजिंग थीटा, दैट इज रोटेशन ऑफ द कॉइल, दूसरा हम लोग कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग एरिया। एरिया कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एक कॉइल अगर रखा हुआ है, इसके अंदर एक कॉइल इस तरह से रखा हुआ है, तो अगर कॉइल का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है तो फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स वेरी कर रहा है, बिकॉज इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। बाय चेंजिंग एरिया, एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स वेरी कर रहा है, ठीक है। लिंकेजेस ऑफ दिस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज कम हो रहा है, इस तरफ अगर हमारा कॉइल मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसके इंटरेक्शन में आ रहा है वो कम हो रहा है। तीसरा हमारा क्या हो सकता है? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज कीजिए तो आपका भी क्या वो हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाय चेंजिंग भी। इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस भी हो जाएगा कॉइल में। तो ये हमारा 3 मेथड है जिससे हम लोग चेंज कर सकते हैं फ्लक्स में, और ईएमएफ में भी हम लोग को मिलेगा बदलाव, ईएमएफ भी चेंज करेगा, ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, बिकॉज
फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग किसी 3 फैक्टर्स को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे और ईएमएफ को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स का वेरिएशन हमारा इस तरह से दिया हुआ है थ्रू ए लूप। हम लोगों को इंड्यूस ईएमएफ निकालना है टाइम t = 1 सेकेंड पर। तो इसको सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? हम लोग को पता है E क्या होता है, -d∅b/dt। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड तो हम लोग मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड d∅b/dt। ∅b का वैल्यू यहाँ से उठा के इस पर डालेंगे, तो d 4t² + 3t /dt। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करने का प्रयास करते हैं। तो d 4t² /dt + d 3t/dt। तो 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ t² क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, 2t। 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dt/dt 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8t + 3 हो जाएगा। बट वी आर इंटरेस्टेड इन एट टाइम t = 1 सेकेंड। हम लोग को 1 सेकेंड पर निकालना है इंड्यूस ईएमएफ, 1 सेकेंड पर निकालना है। नाउ टू कैलकुलेट दिस वी कैन पुट E at time t = 1 second, we have 8 × 1 + 3, that is 11 volt. Got my point? So ये JEE मेंस का सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि एक कॉइल है जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, उसमें 1000 टर्न्स है और उसका फेस का जो एरिया है वो कितना है, 4 cm² is placed with its axis parallel to a magnetic field which decreases by 10⁻² Wb/m²। ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो कितने समय में डिक्रीज हो रहा है, 0.01 सेकेंड में। तो ईएमएफ इंड्यूस निकालना है हम लोगों को इन मिलीवोल्ट में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। ईएमएफ = क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक सब्सटैंशियल टाइम में हो रहा है तो वी कैन राइट इट -del∅b/del t, राइट। del∅b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है तो n को भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग अपेंड कर सकते हैं। तो n del∅b को क्या लिख सकते हैं, del∅b को हम लोग लिख सकते हैं b × a लिख सकते हैं /del t, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा = क्या हो जाएगा, 0। सिंस पैरेलल है तो ये कितना हो जाएगा, -n del b, ठीक है, इंटू एरिया /del t, ये हो जाएगा। एरिया तो कांस्टेंट है, वो निकल जाएगा बाहर, क्योंकि वैरी हमारा क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही वैरी कर रहा है। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इसीलिए एरिया को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। और b.a क्या हो जाएगा हमारा, BA cos 0 हो जाएगा। cos 0 तो 1 होता है, तो BA हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर BA लिखा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ही वैरी कर रहा है इसलिए इसको डेल के साथ अटैच किया है। और A हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर निकल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डेटा हमारे पास है, n कितना दिया हुआ, 1000, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, डिक्रीजेस बाय कितना, डिक्रीजेस बाय 10⁻²। जब डिक्रीज कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, अपेंड माइनस करना पड़ेगा, -10⁻²। एरिया 4 cm² दिया हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 0.01। इसको सॉल्व करते हैं, -2 + 2 10 हो जाएगा, ये 4 × 10⁻⁴, माइनस प्लस -4, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना बचा, 1 2 3 4 ×
10⁻⁻1 वोल्ट हुआ। देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मिलीवोल्ट। 1 मिलीवोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 मिलीवोल्ट कितने के बराबर होता है? 10⁻³ वोल्ट के बराबर होता है 1 मिलीवोल्ट। तो अगर हम लोग को वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डू इट विथ 1000 मिलीवोल्ट। ठीक है, वोल्ट को मिलीवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 × 10⁻1 × 1000 मिलीवोल्ट। ठीक, तो हमारा क्या बचेगा? ये 400 मिलीवोल्ट। दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर आंसर 400 मिलीवोल्ट। यहाँ पर डाल दीजिए 400 मिलीवोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव विथ अस इज लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है? लेट अंडरस्टैंड। लेंज लॉ बोलता है रेसिस्ट चेंज, आई रेसिस्ट चेंज। हमको चेंज पसंद नहीं है, आई रेसिस्ट चेंज। इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है? लेंज लॉ होता क्या है कि इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट is in the direction opposite to the effect producing it, opposite to the effect producing it। लिटरल सेंस बोलते हैं कि इट अपोज द चेंज, अपोज द चेंज। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि ये हमारे पास कॉइल है, जैसे हमारे पास ये कॉइल है, सोलेनॉइड का कॉइल है, ये सोलेनॉइड का कॉइल है हमारे पास। इससे हम लोगों ने अटैच कर रखा है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को अटैच कर रखा है, गैल्वेनोमीटर का काटा है इस तरह से। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट को लेके आ रहे हैं इधर, नॉर्थ ये साउथ ये। हम लोगों को पता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज करता है, साउथ में एड करता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, कॉइल के इन्फ्लुएंस में आएगा, इस तरह से, इस तरह से। तो ये कह सकते हैं कि ये एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा है। बी एग्जिस्टिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है हमारा। बी एग्जिस्टिंग इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये लेंज लॉ बोलता है कि ये एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, इसको अपोज करने वाला जो डायरेक्शन होगा वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा। इंड्यूस में उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ताकि इसके एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को ये कम कर सके। तो ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो करंट में कैसे दौड़ेगा? करंट कैसे दौड़ेगा कॉइल में? करंट कैसे दौड़ेगा कॉइल में? मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐड कर रहा है, तो करंट इस तरह से दौड़ेगा हमारे कॉइल में, इस तरह से, ताकि इसका डायरेक्शन क्या हो? मैग्नेटिक इफेक्ट, जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको कम करे। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है लेंज लॉ का। लेंज लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस ईएमएफ ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इफेक्ट प्रोड्यूसिंग इट। ये इफेक्ट इसको प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को ये अपोज कर रहा है, in the direction opposite the effect producing it। ठीक है, is in the direction opposite to the effect producing it। या मैग्नेटिक फील्ड से तुम्हारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ का जो प्रोड्यूस होने का जो डायरेक्शन है वो उसका अपोजिट वे में उसको अपोज करेगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इफेक्ट प्रोड्यूसिंग इट।
जो हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेगेटिव साइन, वी कैन से नेगेटिव साइन in Faraday law of electromagnetic induction induction में क्या बताता है? ईएमएफ जो दिया हुआ हमारा क्या है? माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ये जो नेगेटिव साइन है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बिल्कुल फ्लक्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये फ्लक्स जो उसको क्रिएट कर रहा है वो उसको अपोज कर रहा है, मतलब ये होने नहीं देना चाहता है। अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो उसको चेंज होने नहीं देना चाहता है। ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि फ्लक्स के क्रिएशन को, फ्लक्स के चेंज होने को ये अपोज कर रहा है। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब यही है, इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स के चेंज होने को ये अपोज कर रहा है। तो ये है हमारा लेंज लॉ। कुछ केस स्टडीज करते हैं, केस स्टडी से हम लोग को समझ में आएगा। केस स्टडी इसमें क्या करते हैं कि एक अगर हमारा इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग be it due to induced current is along the existing be due to existing is along the existing इसका मतलब ये है that is B existing is parallel to B induced। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसको कॉइल के माध्यम से, देखते हैं कि किस तरह से हमारा फ्लक्स का चेंजेस होगा। सपोज कीजिए हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, ये किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आप मैग्नेटिक फील्ड लेकर के आ रहे हो नॉर्थ साउथ, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का मोशन इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बढ़ेगा। एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। सॉरी, एक मिनट। हमारा क्या केस है? पहले फ्लक्स डिक्रीजिंग का केस है। लेट अस टेक द डिक्रीजिंग केस। अगर हमारा मैग्नेट इस तरफ जा रहा है, तो हमारा क्या होगा? एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। ये बोल रहा है कि इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग बी ड्यू टू एग्जिस्टिंग इज अलोंग द due to existing is along the existing B. B induced is due to existing is along the existing B. जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा। यही बोल रहा है कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा। B due to existing is along the existing magnetic field। तो ये हमारा B इंड्यूस का डायरेक्शन होगा। तो इसके लिए करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे, इस तरफ से। अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको इस तरफ से दिखेगा कोई। अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। एग्जिस्टिंग बी इंड्यूस्ड is
चेंज कर देते हैं लैंग्वेज। बी इंड्यूस्ड इज अलोंग द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक हमारा दूसरा केस है, इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, अगर हमारा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इफ फ्लक्स इंक्रीजिंग, तो बी इंड्यूस्ड इज अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स सी, इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है ये, ठीक है। आप एक मैग्नेट ला रहे हो नॉर्थ से साउथ, उसका मोशन इस तरफ है। जब आप इस मैग्नेट को इस तरफ लेकर के आ रहे हो तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है। ये बोल रहा है कि अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो बी इंड्यूस का डायरेक्शन किस तरफ होगा, अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो एग्जिस्टिंग इंड्यूस का किस तरफ डायरेक्शन होगा, इस तरफ होगा इंड्यूस का डायरेक्शन, इंड्यूस का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो बी इंड्यूस्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, बी इंड्यूस्ड। तो ये क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज कर रहा है उसको डिक्रीज करना चाहता है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरफ से फ्लो करेगा। देखिए राइट हैंड रूल से देखिए, इस तरह से पाल्म हैंड रूल, इस तरह से होगा आपका डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इस तरह से दिखेगा आपको। तो जो भी लेंस लॉ में क्या होता है कि आपका जो फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको अपोजिट वे में मैग्नेटिक फील्ड को आपको इंड्यूस बनाना पड़ेगा। अगर डिक्रीज कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे होता है ना, अमीर आदमी जो होता है, जो वो क्या करता है, वो गरीबों को सपोर्ट करता है, ठीक है, वही करता है। तो लेंस लॉ उसी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। तो अगर एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो अमीर आदमी उसको सपोर्ट करेगा, चलो भाई तुम्हारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा करके तुम्हारा एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को तगड़ा बनाए। अगर फ्लक्स इंक्रीज करा तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा, गवर्नमेंट लगा देगी टैक्स, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, अमीर आदमी पर ज़्यादा टैक्स लगा देगी, तो क्या होगा, उसका पैसा घटने लगेगा। तो फ्लक्स जैसे इंक्रीज कर रहा है, यानी कि मनी इंक्रीज कर रहा है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाएगी आप पर, तो आपके पैसे को कम करना चाहेगी। अगर आप गरीब है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी आपको। तो ठीक लेंस लॉ भी उसी प्रिंसिपल पर है। लेट्स बिगिन विद अ न्यूमेरिकल। एक हमारा रिलेशन है वो देखते हैं, लास्ट ये टॉपिक इस सेशन का। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए कॉइल, कॉइल के पास लेके आ रहे हैं। तो कॉइल के पास जैसे लेके आइएगा तो ये क्या होगा, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड विल गो ऑन इंक्रीज, ठीक है, वो बढ़ेगा। तो इंड्यूस करंट इन द कॉइल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द साइड ऑफ ए मैग्नेट। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, उसको करंट का डायरेक्शन किस तरह होगा, ये एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में इंक्रीज कर रहा है। तो लेंस लॉ के अनुसार क्या होगा, इस एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज कर रहा है इसको घटाने का प्रयास करेगा। तो उस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन हमारा इस तरफ हो जाएगा। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, ऑब्जर्वर अगर देखेगा इस तरफ से ऑब्जर्वर देखेगा तो उसे कैसा लगेगा, करंट का डायरेक्शन उसको इस तरह का दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्जर्वर विल सी इन करंट इन इंड्यूस करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इंड्यूस करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, induce current in anti-clockwise direction, induce current in anti-clockwise direction। होप ये फंडामेंटल लेंस लॉ का क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है।
अब चलते हैं, हम लोग इंड्यूस करंट के बारे में जानते हैं कि इंड्यूस करंट क्या होता है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इंड्यूस करंट. तो हम लोग चलिए बिगिन करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस करंट? इंड्यूस करंट क्या होता है? एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि जैसे, एक मिनट, जैसे हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस कुछ है हमारे पास. सपोज कीजिए R है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द लूप. R इज द रेजिस्टेंस ऑफ लूप. तो इंड्यूस करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? इंड्यूस EMF गिव राइज टू इंड्यूस करंट. एग्री? तो हम लिख सकते हैं कि I इंड्यूस क्या हो जाएगा भाई? EMF इंड्यूस्ड बाय R. ओम्स लॉ लागू है सब तरफ. E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल फाई B बाय डेल टी इंटू 1 बाय R. कह सकते हैं हम लोग डेल फाई बाय डेल टी इंटू R. तो ये हमारा I इंड्यूस्ड हो गया, ये I इंड्यूस्ड हो गया डेल फाई बाय डेल टी. तो हम कह सकते हैं कि इंड्यूस EMF, देन वी कैन से क्या कह सकते हैं भाई? इंड्यूस EMF does not depend upon the nature of the coil. Does not depend on the nature of the coil. किस मटेरियल का बना है उससे इसको कोई लेना देना नहीं है इंड्यूस EMF के. बट इंड्यूस करंट is dependent on nature of coil, इनकी रेजिस्टेंस. ठीक है, हमारा इंड्यूस EMF नेचर ऑफ द कॉइल पर नहीं डिपेंड करता है, लेकिन इंड्यूस करंट हमारा डिपेंडेंट है ऑन द नेचर ऑफ द कॉइल. गॉट माई पॉइंट? होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस. सबको समझ में आ रहा है? सारा बेसिक ही चीज़ है, कोई हाई फाई चीज़ नहीं है. ठीक है, आपको ये भी बता दें कि अगर आपका ओपन लूप हो, इन ओपन लूप इंड्यूस EMF एग्जिस्ट करता है, exist but no induced current. Induce current है ना? एग्री है सब लोग? क्योंकि अगर ये हमारा कॉइल ओपन है, ये कॉइल हमारा ओपन है, इसमें हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, तो इस दोनों लीड में हम लोगों को क्या मिलने वाला है? EMF मिलने वाला है. ठीक है, और करंट के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? क्या चाहिए? क्लोज लूप चाहिए. नो क्लोज लूप नहीं है. तो इन ओपन लूप इंड्यूस EMF एग्जिस्ट बट नो इंड्यूस करंट. दोनों लीड पर अगर हम वोल्टमीटर लगाएं तो विल गेट इंड्यूस EMF. राइट, अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर. अमाउंट ऑफ चार्ज समझते हैं कि क्या है अमाउंट ऑफ चार्ज. अमाउंट ऑफ चार्ज को प्रयास करते हैं समझने का कि अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है. हम लोगों को पता है कि I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? dq बाई dt लिखते हैं. ठीक है,
अगर हम लोगों को चार्ज निकालना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो डी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू डी टी। हम लोगों को चार्ज चाहिए तो डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट करेंगे आई इंटू डी टी। आई को हम लोगों ने क्या निकाल के रखा है, आई को हम लोगों ने ये निकाल के रखा है, आई के पर ये पुट अप कर देते हैं। आई इज इक्वल टू माइनस 1/r डेल डी फाई बी बाई डी टी इंटू डी टी। ये डी टी कैंसिल, 1/r निकाल देते बाहर डेल फाई बी, तो ये हमारा Q हो जाएगा। इफ एवरेज चेंज इन फ्लक्स है, if there is an average change in flux, if there is an average change, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, एवरेज चेंज इन फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, डेल फाई बी लिख सकते हैं, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी बाई आर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ चार्ज we have for an induced current, right? Hope everyone got कि ये क्या है, ये किस पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा है कि इंड्यूस करंट से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, वी गेट दैट आइडिया। अब चलते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं एंड विल वाइंड अप। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक क्लोज कॉइल है हमारे पास जिसमें 500 टर्न है in a rectangular frame of area 4 centimeter square. A closed coil consists of a rectangular frame of area 4 centimeter square and has a resistance 50 ohm. The coil is kept with its plane perpendicular to a uniform magnetic field of 0.2 Weber meter square. The amount of charge flowing through the coil if it is turned over will be, मतलब 180 डिग्री से टर्न होने के बाद कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोगों को निकालना है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास दिया है तो हम लोग यहाँ पर इफ n टर्न्स देन Q के पर क्या लिख सकते हैं, माइनस n डेल फाई बी बाय आर। तो हम लोग चलिए लगाते हैं इसमें फॉर्मूला और सॉल्व करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई बी बाय आर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो तो n से गुना करेंगे। अब देखिए फ्लक्स का चेंज कैसे निकालना है, तो डेल फाई बी कैसे निकलेगा, B डॉट ए से निकलेगा, बी ए कॉस थीटा। पहले इनिशियल पोजीशन कॉइल का कितना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन कितना है कॉइल का वो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो पी ए कॉस थीटा इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन परपेंडिकुलर टू द कॉइल है, परपेंडिकुलर टू द कॉइल मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। फाइनल पोजीशन क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 180, राइट। तो ये दो पोजीशन हमारा दिया है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, इस पे फ्लक्स का वेरिएशन निकालते हैं, चेंज इन फ्लक्स निकालते हैं। तो चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालेंगे, बी ए कॉस 0 माइनस कॉस 180। अगर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव में करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में करना है। तो ये हमारा चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2BA हो जाएगा, 2BA, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है, 1 होता है, कॉस 180 1 होता है, ठीक है, कॉस 180 1 होता है। माइनस में हम नहीं ले रहे, आप माइनस भी लगा के कर सकते हो, क्योंकि अगर फाइनल टू माइनस इनिशियल में लगे, इसको बढ़िया से कर देते हैं। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इनिशियल पोजीशन मेरा कितना है,
इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, बी ए हमारा कॉमन हो जाएगा। फाइनल पोजीशन कितना है हमारा 180, तो 180 लिखिए। कॉस यहाँ पर माइनस अपेंड करना होगा आपको फॉर्मूला में, कॉस 180 माइनस कॉस 0 इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी ए, क्योंकि -1 होने वाला, कॉस 0 -1 होने वाला है। अभी नहीं लगाएंगे इसमें, इसको हटाइए अभी। चलिए अब इसका आंसर क्या आएगा, -2ba आएगा बाय मैथमेटिक्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को उठा के वहाँ पर डालेंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है -n del phi b बाय r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -n -2ba बाय r, तो ये कितना हो जाएगा 2nba बाय r। n का वैल्यू कितना दिया हुआ 500 टन्स, तो लेट अस राइट 500 टन्स। n का वैल्यू हमारा कितना 2, 500 टन्स। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ 0.2 वेबर, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ 0.2 वेबर। एरिया कितना दिया हुआ 4 × 10⁻⁴, सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना होगा उसको। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ हमारे पास 50 ओम, 50 ओम दिया हुआ है, 50 ओम दिया हुआ है। राइट, इसको काट दिए 1 से, 10 से कट गया, ये 0.2 और ये 10 उड़ गया, 2 to the 4 16 × 10⁻⁴ हो जाएगा, 16 × 10⁻⁴ कूलम। ये हमारा आंसर होगा 16 × 10⁻⁴ कूलम। तो ये बेसिक क्वेश्चन था हमारा जेईई मेन के लिए, और नीट में भी ऐसी तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है। क्लास 12th में भी 11th में भी इसका लोएस्ट वर्जन पूछा जाता है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि अगर आपको कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है तो प्लीज़ हमें बताइए, तो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, ठीक है। थैंक यू सो मच।